Yesterday we discussed कि we can, if we want to print something in the script environment, for that we need something so that we can display our information in the shell environment. क्योंकि जो भी हम यहाँ लिखेंगे, whatsoever we will write here in the script environment will execute in the shell automatically. So suppose if I am writing hello over here, so automatically I am getting the result in the hello in the shell environment. But if I want to execute something यहाँ पर, अगर if I am writing something in the script environment and if I want to display that thing, so without print function I can't display those things. So I need something so that I can display it. So only the print function is providing me that facility so that I can display my thing in the shell. Because at least I need something so that where I can see how my result is going to execute. Now it is not necessary. Whatsoever you want to print as it is in your programming language, you have to write in the double quotes. This is the one rule. Whatsoever you want to print as it is, then you have to put in double quotes. Suppose sum of two numbers. If I want to display this thing, so then I have to put in double quotes. Obviously, if I am writing in the script environment, for that it is necessary that I have to use the print function. If I am printing something in the shell environment, then it is up to me whether I want to use the print function or not. Then it will work in both the ways. Clear? Now you can see the difference. Whenever I'm writing something in the double quotes, if I'm executing in the shell environment, it will display my result in the single quote. But if I'm executing the same thing with the print function, it is not showing any single quote. यहाँ पर डिफरेंस समझ आया? यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में चीज़ें इंक्लूड की, उसने यहाँ पर उसको सिंगल कोट में डिस्प्ले किया एज इट इज़. बट द सेम थिंग इफ आई एम एग्जीक्यूटिंग विद द प्रिंट फंक्शन, देयर इज नो कोड. क्लियर है? ये डिफरेंस है प्रिंट फंक्शन से. वो टेक्स्ट का टेक्स्ट ही रहेगा. नाउ suppose yesterday we learned कि if I want to execute, because when I'll execute these two things, it will show my result in this way, because each and every time how many times you are using the print statement, it will execute the values inside the print statement in the next line. Two values, you can write anything. Here I have used 4 print statement obviously, so it will execute all these statements value in the new line. If you are writing nothing in the print function, then it will create a blank line for you. Blank line create होगा. Create a blank line here. You can note down in your register. Print function, write nothing inside the parenthesis. लिखो, it will create a blank line. Just write this line which I have highlighted. Print function, it will create a blank line. नेक्स्ट लाइन में लिखो, हेडिंग में, टू प्रिंट एनीथिंग as it is on the screen, we have to enclose that word or sentence in double quotes. Enclosed that word or sentence in double quotes, single quotes. Ma'am, please repeat. To print anything as it is, to print or display. यहाँ वर्ड लिखो डिस्प्ले, तुम उससे प्रिंट फंक्शन से कंफ्यूज हो गए. टू डिस्प्ले एनीथिंग as it is.
then it is necessary to enclose that word or sentence in double quotes or single quotes. यहाँ तक अभी तक ये तो समझ आया कि आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू एंड विथ सिंगल कोट. इफ यू आर स्टार्टिंग विथ डबल कोट्स देन यू हैव टू एंड विथ सिंगल. यहाँ तक समझ आ रहा है कि अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया, यू हैव टू एंड विथ सिंगल कोट. इफ यू आर स्टार्टिंग विथ डबल कोट्स, यू हैव टू एंड विथ डबल कोट्स. ये नहीं हो सकता कि ऑब्वियसली इट विल शो यू एरर कि इफ यू आर स्टार्टिंग विथ सिंगल कोट एंड यू आर एंडिंग विथ डबल कोट्स. हियर वी कैन सी, suppose here I am writing starting with double quotes but I am ending with single quote, it will show me error because you can't use while scanning screen. ये error है. So you can either enclose the entire thing. It is not necessary that you want to enclose the things that must be in the form of word, characters होने चाहिए. You can enclose anything in the single quote, number also, or you can enclose anything. It will print as it is. रूल वही है कि अगर आपने कोई भी चीज को एज इट इज प्रिंट करना है, यानी कि एक्चुअल जैसे आप चाहते हो वैसे ही डिस्प्ले करो, तो उसके लिए आपका ज़रूरी है कि वो डबल कोट्स में हो. क्लियर है यहाँ तक? कुछ ऐसा जो कंफ्यूज कर रहा हो? यहाँ पर सपोज इफ आई वांट टू राइट प्रिंट, यहाँ पर 2+3, मैंने इसको सिंगल कोट में डाल दिया, तो व्हाट इट विल प्रिंट, ये आपका 2+3. चेक करें एज इट इज, बिकॉज मैंने रूल वाइज क्या किया, उसको सिंगल कोट में एनक्लोज कर दिए. क्लियर है? अब यहाँ पर इस चीज को अगर आपने 2+3 सिंगल कोट में ही डाला, तब क्या होगा, इट विल शो यू वैल्यू. रूल समझ आया? कोई भी चीज को एज इट इज प्रिंट करोगे देन इट आपको यू हैव टू इनक्लूज इन कोट्स. इफ यू डोंट वांट टू पुट इन कोट्स तो इट विल शो यू द कैलकुलेटेड. अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, 2 लिख दिया, तो यहाँ पर वो भी यहाँ पर करके दिखाती हूँ, देन इट विल बी कन्वीनियंट. सपोज मैंने 2.3 लिखा, तो इट विल प्रिंट एज इट इज. यहाँ पर इफ आई एम राइटिंग 243 कुछ भी, so it will print as it is. If I am putting something in the quotes, then obviously it will print as it is. कोई difference नहीं है. पर if I am doing, I can display anything, I can do the calculation inside the print function also. अब हम यहाँ यूज करते हैं, सपोज मैंने लिखा 2+3 2 × 3 भी कर सकते हैं. अब आपका यहाँ पर हम यूज करते हैं कि मैम इसका क्या यूज है. सपोज मैंने लिखा प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर्स. अब रिटर्न इन द, यहाँ 2 लाइन्स में लिखते हैं 2+3. एग्जीक्यूट करते हैं. रूल बताया था कि अगर इफ यू आर यूजिंग 2 प्रिंट स्टेटमेंट इन योर फंक्शन, तो देन इट विल शो योर रिजल्ट इन द 2 लाइन्स. अगर आपके जितने प्रिंट्स हैं, प्रिंट फंक्शन जितनी, हाउ मेनी टाइम्स यू आर यूजिंग द प्रिंट फंक्शन, इट विल show your result in the next line each and every time. Suppose if I am using print to × 3, anything you can print, so it will show your result in the next line.
अब इसमें रूल आता है जो हमने कल डिस्कस किया था, इफ आई वांट टू प्रिंट द नेक्स्ट लाइन रिजल्ट इन द सेम लाइन, for that I can use the end parameter which is a part of the print function but it is optional. तो अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट लाइन में जो मैंने लिखा है ओनली इमीडिएट नेक्स्ट लाइन है, उसके नेक्स्ट लाइन का वो नहीं शो करेगा। तो हम चेक करते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स के बाद इट विल शो योर थिंग्स। यहाँ तक समझ आया? अगर कुछ डिमार्केशन रखनी है देन यू कैन पुट द डिमार्केशन आल्सो, योर चॉइस। मैम एक्सक्यूज मी मैम, बोलो मैम do we need to download the Python script mode separately or it नहीं comes नहीं नहीं, downloaded in it? पाइथन के एनवायरनमेंट में ही आता है, यू डोंट हैव टू डाउनलोड सेपरेटली। हाउ इट मैम विल, मेरे को मिल नहीं रहा है। बेटा क्लिक ऑन फाइल पे जाकर क्लिक करो, फाइल पे जाओ और न्यू पे क्लिक करो, ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस थिंग। फाइल पर click on the file, click on the new, automatically a new screen will open for you. मैम got it, thanks मैम। Any doubt related to this? Again I am writing, I have written everything in the which file? यहाँ तक कुछ ऐसा जो कंफ्यूज कर रहा हो? कल का ही हम डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। इन दिस वे वी कैन डिस्प्ले द थिंग्स whatsoever यहाँ पर it is displaying. Now after this line if I want to print the next line value in the same line, for that क्या आएगा? I can use the end. It is not, अगर if I am not putting any space between the end quotes तो obviously वो space के साथ नहीं करेगा। चेक करें तो यहाँ देखो 58 ऐसा लग रहा है 58 है, but if I want to put something space डालना चाहते हो white space, then it will show two things. अगर if you want to put something inside it, multiplication, नॉर्मली वो एक ही लेटर लेता है, बट आई चेक करते हैं। क्लियर है? जस्ट पुट अप स्पेस बिफोर दिस। यहाँ तक समझ आया? एप्लीकेशन कुछ ऐसा जो समझ नहीं आया? यूज, कभी भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नो नीड टू मग अप द थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको एज इट इज प्रिंट करना है, डबल कोट्स डालो। आपको अगर नेक्स्ट लाइन की वैल्यूज को सेम लाइन में करनी है देन यू हैव टू यूज द सिंटेक्स फॉर्म, ये जो हमने यहाँ पर सिंटेक्स में किया था कि दीज टू थिंग्स आर थिंग। अगर आप ये यूज नहीं करते हो तो ऑब्वियसली इट विल नॉट शो यू योर वैल्यू इन द नेक्स्ट। अगर सपोज इफ आई एम रिमूविंग दिस थिंग विच इज अ ऑप्शनल पार्ट, it will not affect the programming language. यहाँ पर अब मैंने फर्स्ट लाइन में हटा दिया तो नेक्स्ट लाइन की वैल्यूज को इट विल शो या इसमें वेयर एवर यू विल पुट इट विल शो द नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट लाइन कंटेंट इन द सेम लाइन। यहाँ तक समझ आया? कुछ ऐसा जो नहीं समझ आ रहा? हेलो, 35 students have joined in. Yes ma'am। There is not a single doubt from anyone. How is it possible? Anyway, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट, Yes, ma'am. suppose if I want to display two words, if you want to display, suppose here I have written hello world, I have written only a single word inside the print function, it will print as it is. अगर suppose if I want to put two words, more than two things or more than two sentences or words, then you can separate with comma, or here you can write class 11th E. Now let's see how it will print. रिजल्ट में कुछ नहीं चेंज आएगा, वो आपका एज इट इज करेगा। यू कैन पुट
anything. Students 11E. तो यू कैन राइट एनीथिंग, कोई भी चीज़ को अगर आपने दूसरा उसके बाद कुछ लिखना चाहो तो देन यू हैव टू सेपरेट विथ कॉमा। एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए नॉर्मली जब हम इंग्लिश में भी यही लिखते हैं और हिंदी में भी, अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं तो आपको सेपरेट करने के लिए आप कॉमा यूज़ करते हो। द सेम रूल यहाँ पे भी यही अप्लाई होता है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स या सेंटेंसेस को कॉमा से सेपरेट करना है और यू वांट टू enclosed in the single quote, that is purely up to you. It will all depend upon your own requirement. Clear to you? आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। हमने जो कल किया था उसी को डिस्कस करते हैं। सपोज इफ देयर आर मल्टीपल वर्ड्स और अगर मैंने उसमें स्लैश एन लगाते हैं तो जहाँ पे भी मैंने स्लैश एन लगाया है उसके बाद की जो भी सेंटेंसेस है इट विल शो इन द न्यू लाइन। वो वैसे वर्क करता है जैसे आपने दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज की हैं। तो दीज आर द एस्केप सीक्वेंसेस। तो लिखो एस्केप सीक्वेंसेस नेक्स्ट हेडिंग। escape sequences next heading. These are specified escape sequences here. I have specified but not an token card. Here are the escape sequences. I don't know where on which page I put it. Before this I put it here. These are the non-graphic characters which are used only for formatting. These are non-graphic characters which are used only for formatting. formatting, formatting. Full stop. These symbols must be enclosed in double quotes or in single quotes. These symbols must be enclosed in single quotes or in double quotes. Clear? Ma'am, can you please repeat the first line? These are escape sequences के लिखो ES escape sequences. These are non-graphic characters which are used mainly for formatting. Clear? Full stop. These symbols must be enclosed in double quotes or in single quotes. Next. These symbols, next point, these symbols occupies 1 byte in computer memory and are always used with
backslash, full stop. These are slash for new line, इसको हम फॉर्म फीड भी कहते हैं, और फॉर्म फीड स्लैश फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस, बाय डिफॉल्ट 0.5 स्पेस देता है when you are using single type. Now next is single A for alert. Bell के लिए होता है normally, हम पहले इसको for alert और bell, it will give a beep, one single beep sound. Now slashes for if we want to display the symbol in our sentence, for that we can use this thing, slash symbol, slash quote, स्लैश सिंबल दोबारा समझा दो. slash symbol, single quote, slash double quotes for double quotes. These are the few symbols that we are using in our things. यहाँ पर आप लिख सकते हैं. ये बैक स्पेस के लिए सिंगल. इफ यू वांट, सपोज कहीं पे भी अगर आपने डिस्प्ले पर्पस पे अगर आप लिखना चाहो, सपोज हेलो, और इफ यू वांट टू पुट अ सिंगल, तो यहाँ पर आपका डबल स्लैश सिंबल डालो. तो आपका अगर आप सिंगल भी डालोगे देन इट विल वर्क फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. पर हमने रीडेबिलिटी के लिए अगर मैं यूज़ करूँ देन इट विल शो दिस सिंबल ओनली सिंगल स्लैश, तब भी वर्क करता है. तो ओनली दीज सिंबल्स आर मेनली वी आर यूजिंग. ये लाइन फीड के लिए होता है. So these symbols are basically we are using in our things. Escape sequences, these are non-graphic characters. मैम बोलो बेटा. मैम नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स का क्या मीनिंग है? नॉन ग्राफिक का मतलब होता है कि आपकी चीजें सिर्फ उसमें कुछ ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, कुछ सिंबल्स और नहीं बनेंगे आपके, कुछ और आप क्रिएट नहीं कर रहे हो. दीज आर यू बेसिकली यूज ओनली फॉर फॉर्मेटिंग पार्ट एंड मेनली यूज्ड विद प्रिंट फंक्शन, नो अदर फंक्शन. और हम किसी और फंक्शन के साथ यूज नहीं कर सकते, मेनली फॉर फॉर्मेटिंग एंड यूज्ड ओनली विद प्रिंट फंक्शन. कोई और फंक्शन नहीं है जो हमारा डिस्प्ले के लिए यूज़ हो, तो सिर्फ प्रिंट फंक्शन है, हम उसी में इसको यूज़ करते हैं. क्योंकि फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डिस्प्ले पर्पस के लिए, तो आप फॉर्मेटिंग को ये भी कह सकते हो डिस्प्ले पर्पस के लिए. कि हम जब फॉर्मेटिंग करते हैं तो हम डिस्प्ले ही तो करना चाहते हैं, ओनली देन वी आर ओनली तभी हम यूज़ करते हैं ना. तो इसका यूज़ सिर्फ यही है. ये पता होना चाहिए कि all these escape sequences will occupy 1 byte in the computer memory. So in these ways we can use a slash p. You can use as many as time in your code, then it will display your things in that way. I've used 2 times slash p. इकट्ठा भी लिख रहे हैं तब भी ये नहीं लिखोगे आप कि slash t लिखा और फिर t लिख दिया. No, each and every time if you want to use another escape sequence you have to use. This is the complete slash t, this is the complete slash t. Students are using basically slash and ये नहीं है. Then it will print n on your screen. Let's see how it will execute the things. यहाँ पर देखो n because you have not used the slash n before this, so then it will not create a new line.
इफ यू वांट टू यूज, सपोज मैंने एक n के बाद यहाँ पर स्लैश n यूज किया है, बीच वाला n छोड़ दिया, देन ऑब्वियसली इट विल प्रिंट एज इट इज फॉर यू। क्लियर है? यहाँ पर n एज इट इज था, अदरवाइज इट क्रिएटेड अ न्यू लाइन फॉर यू। स्लैश टी था, दैट इज वाई मैंने 2 बार स्लैश टी डाला, तो आपका स्पेस सफिशिएंट। तो फॉर्मेटिंग में हमारा फिक्स्ड होता है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर नहीं, तो जब आप चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हो 1 2 3 ऐसे इतने स्पेसेस से, हाउ यू विल कैन इमेजिन कि कितना स्पेस जा रहा है। तो लेट द स्लैश टी टू यूज द थिंग्स, तो आपका वो उतने ही स्पेस पे चीज़ें आपके डिस्प्ले होगी। इसका एग्जाम्पल और चेक करते हैं, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ लिखा इन द नेक्स्ट लाइन, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है योर क्लास, और उसके बाद इफ आई एम पुटिंग स्लैश टी टोटल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल स्पेस में कहीं नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि आई हैव यूज स्लैश टी, इक्वल स्पेस आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर स्पेस डालोगे तो यहाँ पर स्पेसेस में कई बार आपका ठीक से आ भी नहीं पाता और वो अनइवन भी रहता है। चेक करते हैं। तो यहाँ पर, तो अगर आप बेटर है यू आप फॉर्मेटिंग नॉर्मली जब हम वर्ड में भी टाइप करते हैं, वी आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्पेस बार टू पुट अ स्पेस, बेटर है यूज द टैब बार सो दैट इट विल शो योर थिंग्स इन अ सिस्टमेटिक फॉर्मेटेड मैनर। तो सेम थिंग यहाँ पर आप करो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि वेदर इट विल शो योर थिंग्स इन सिस्टमेटिक वे और नॉट। अब यहाँ पर ई सेक्शन को इफ आई वांट टू डिस्प्ले इन द नेक्स्ट लाइन, ऑब्वियसली इट विल प्रिंट द अदर थिंग्स। स्लैश ई है, यहाँ के बाद स्लैश एन, आई जस्ट डोंट वांट टू यूज द प्रिंट फंक्शन ईच एंड एवरी टाइम, फॉर दैट आई कैन यूज दिस। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पर 11 थी, नेक्स्ट लाइन में दिखाया। अगर आपने नेक्स्ट वाली सिंबल को और डिस्प्ले करना चाहते हो, योर क्लास सेम लाइन में आ रहा है, अगर इफ यू वांट टू प्रिंट ई सेक्शन के बाद स्लैश एन डाल देते हैं, तो क्या करेगा वो, इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन। ये जितना करोगे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। स्लैश एन यूज हुआ है तो नई लाइन क्रिएट होगी, जो भी उसके बाद लिखा है नई लाइन आएगी। बिफोर दिस इफ आई एम यूजिंग द स्लैश एन, तो वो वहाँ पर वो क्या करेगा, इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन बिफोर डिस्प्लेइंग। यहाँ पर देखो, यू कैन सी देयर इज नो गैप बिटवीन इट, बट आई हैव पुट स्लैश एन बिफोर दिस वर्ड, तो आप यू कैन ईजिली मेक आउट इट विल क्रिएट अ न्यू लाइन फॉर यू wherever you will use slash n will use to create a new line for you.